ਸੋ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਿਊਨੋਲੀਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕਿਊਨੋਲੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ 5th ਐਂਡ 8th ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜੋ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਬਾਈ ਪੁਟਿੰਗ ਅ ਓਵਲ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਬ੍ਰੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਬ੍ਰੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 5 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਬੋਥ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ in presence of concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid, so we are getting again 5 nitroquinoline and 8 nitroquinoline। सो रिएक्शंस सारे सेम है, सिर्फ मेन तुसी जिहड़ा स्ट्रैस देना है वो पोजीशन ते देना है कि इलैक्ट्रोफाइल की पोजीशन की होएगी। सल्फोनेशन सल्फर ट्राईऑक्साइड असी यूज़ कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, और वी कैन यूज़ concentrated sulfuric acid। so again we are getting 5 substituted, so this is known as quinoline 5 sulfonic acid। Similarly we have, this is known as quinoline 8 sulfonic acid। so quinoline 5 sulfonic acid, quinoline 8 sulfonic acid। एक होर चीज़ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਪਿਰੀਡੀਨ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਰੀਡੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਿਨੋਲੀਨ। ਉਸਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਿਰੀਡੀਨ ਰਿੰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰਬੋਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਿਰੀਡੀਨ ਰਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਿੰਪਲ pyridine, quinoline will undergo electrophilic substitution reaction under comparatively milder conditions। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ, so this is quinoline। एरोमेटिक तो है ही है क्योंकि 10 पाई इलैक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 पाई इलैक्ट्रॉन है। बट नाइट्रोजन को इलैक्ट्रॉन्स लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पे ने जिहड़े कि इसे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दे विच है। तो इस करके ये बेसिक है। और अगर असी इस दे विच कोई एसिड ऐड कर देंगे, जिस तरह कि अगर असी इस दे विच HCl ऐड कर दिए तो सॉल्ट बन जाएगा। सो H इत्थे पॉजिटिव चार्ज और Cl नैगेटिव, तो इसका नाम की हो जाएगा किनोलीन हाइड्रोक्लोराइड। सो किनोलीन हाइड्रोक्लोराइड, या फिर असी इसमें कह सकते हैं किनोलीनियम क्लोराइड। जिस तरह अमोनीया तो अमोनीयम क्लोराइड, उसी तरह किनोलीन तो किनोलीनियम क्लोराइड। और इसी तरह एक होर रिएक्शन है, अगर असी इस कोई भी अल्काइल हैलाइड ऐड करते हैं तो ये लोन पेयर जोड़ा है क्योंकि इलैक्ट्रॉन रिच है, इस कार्बन ते पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये इससे अटैक करेगा और ये आयोडीन बाहर चली जाएगी एज आयोडाइड। तो साढ़े को जोड़ा प्रोडक्ट बनेगा ये बन जाएगा। सो इसका नाम की हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन दिता है। सो दिस इज एन मिथाइल quinolinium due to positive charge, quinolinium iodide। So this is N
मिथाइल क्यूनोलिनियम आयोडाइड। सो ये रिएक्शन शो कर रहा है इज द बेसिक नेचर, क्योंकि ये भी रिएक्शन इसलिए हो रहा है बिकॉज इट इज़ हैविंग लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। उस तो बाद अगर असी क्यूनोलिन दी स्ट्रक्चर देखिए, सो ये क्यूनोलिन दी स्ट्रक्चर है। सो वी कैन सी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इट विल विड्रॉ दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स इटसेल्फ, जिस दे नाल इत्थे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन ते नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस, तो एक होर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। इत्थे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन सीधे शिफ्ट होगी और पॉजिटिव चार्ज इत्थे आ जाएगा। उस तो बाद अगर असीं देखिए तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर आप फिर इन्हों की पोजिशन शिफ्ट कर दिए, ऑल्टरनेट कर दिए, इत्थे कर दिए, तो फिर रेजोनेंस होएगी, उस दे नाल पॉजिटिव चार्ज दूसरी रिंग में शिफ्ट होएगा। बट अगेन वो स्ट्रक्चर की कॉन्ट्रीब्यूशन घट जाएगी, क्योंकि उस दे नाल इस रिंग का एरोमेटिक करैक्टर खत्म हो जाएगा। बट ये दो स्ट्रक्चर्स दे विच कार्बोसाइक्लिक रिंग का भी एरोमेटिक करैक्टर रिटेन्ड है, सो ये स्ट्रक्चर्स एक्स्ट्रा स्टेबल है। But in these structures we can see that positive charge is present at position number 2 as well as 4. So अगर असी इस दे विच न्यूक्लियोफाइल ऐड करिए, then unexpectedly quinoline can also undergo nucleophilic substitution reaction, and the attack of nucleophile is preferably at position number 2 and sometimes at position number 4. So इसीलिए है क्योंकि इत्थे पॉजिटिव चार्ज है। सो ये रिएक्शंस असी शो कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। और ये रिएक्शन असी ऑलरेडी पीरीडीन के केस भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये रिंग पीरीडीन रिंग की तरह ही बिहेव कर रही है। सो पीरीडीन च सानू पता है सैकेंड और फोर्थ पोजीशन ते न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा सी, और क्यूनोलिन के केस भी वी कैन सी अटैक एट पोजीशन नंबर 2 and 4। सो अगर असी न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं, जिस तरह कि अगर असी हीट करिए क्यूनोलिन विद सोडामाइड, सो सोडामाइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, or we can say strong nucleophile also, so it will attack at position number 2. So this is 2 amino quinoline, और कुछ अमाउंट साढ़े को 4 अमाइनो क्यूनोलिन की भी बनेगी। और ये रिएक्शन जोड़ा है इसनों असी चीची बेबिन रिएक्शन कहने हैं। और इस जो स्पैलिंग्स है डिफरेंट बुक्स के विच डिफरेंट स्पैलिंग्स दिते हुए हैं, एंड द सेम रिएक्शन इज शोन बाय पीरीडीन। इसी तरह अगर असी इस दे विच एन ब्यूटाइल लीथियम ऐड कर दिए, मीनस CH3 CH2 CH2 CH2Li, एन ब्यूटाइल लीथियम जोड़ा कि ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है, इस दे विच आर पार्ट के उपर नेगेटिव चार्ज है, लीथियम ते पॉजिटिव चार्ज है। सो इट इज़ न्यूक्लियोफाइल, सो इट विल again attack at second position of quinoline, and this is known as 2-butyl quinoline. So this is 2-butyl quinoline। इस तो बाद साढ़े को आ गया है रिडक्शन रिएक्शन। सो क्यूनोलिन दे विच क्योंकि दो रिंग्स ने जिहड़ियां कि एरोमेटिक करैक्टर है और जिन्होंने असी रिड्यूस कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन कि केड़ा रिड्यूसिंग एजेंट लै रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग पार्शियल रिडक्शन और कंप्लीट रिडक्शन हो सकती है। जिस तरह कि अगर असी रिडक्शन करांगे लीथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड नाल, तो उस केस दे विच या लीथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड लै लांगे या सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनीया विच इज़ अगेन अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो उस केस दे विच जिहड़ी रिडक्शन होनी है वो पीरीडीन रिंग दे विच होएगी एंड पोजीशन नंबर 1 2। सो एक हाइड्रोजन इत्थे ऐड होएगा, एक हाइड्रोजन इत्थे हो जाएगा ऐड। सो इस तरीके नाल और इत्थे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। सो दिस इज नोन एज 1,2 डाईहाइड्रो क्यूनोलिन। और अगर असी रिडक्शन कर रहे हैं टिन एंड HCl की प्रेजेंस दे विच,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ ਨਿਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲਿਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ 1 2 3 4 ਚਾਰਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 1 2 3 4 ਟੈਟਰਾ hydroquinoline, and reduction in presence of catalytic hydrogenation, and if the catalyst uses platinum then both rings are completely reduced. So you can see कि चारों जो सारे डबल बॉन्ड सीगे वो सारे दे सारे ही रिड्यूस हो गए हैं। और कितने डबल बॉन्ड रिड्यूस हुए हैं? In the starting material we had 5 pi bonds. So 5 means we have to add hydrogens all the 10 positions. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸਿੰਪਲੀ ਰਾਈਟ ਡੈਕਾ ਹਾਈਡਰੋਕਿਨੋਲਿਨ। So deca ਦਾ ਮਤਲਬ 10 hydrogens. We need not to specify the positions because all the positions are reduced. And the last reaction in this case is oxidation. ਹਾਂਜੀ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗੇਨ ਦੋ ਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਪੀਰੀਡੀਨ ਰਿੰਗ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬੋਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿੰਗ। ਔਰ ਕਿਸ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੰਪੈरेटिवली ज़्यादा है? वी नो कार्बोसाइक्लिक रिंग इज़ मोर इलैक्ट्रॉन रिच और ये जिहड़ी रिंग है कंपैरेटिवली लैस इलैक्ट्रॉन रिच बिकॉज ऑफ इलैक्ट्रोनैगेटिव करैक्टर ऑफ नाइट्रोजन। सो अगर इलैक्ट्रॉन रिच ज़्यादा है एंड वी नो ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन। सो इलैक्ट्रॉन बाहर निकलने हैं, इलैक्ट्रॉन लूज होने हैं, तो कितों इलैक्ट्रॉन लूज ज़्यादा होंगे? जिहड़ा सिस्टम ज़्यादा रिच है, जिहड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन। So it means it is the carbocyclic ring which undergoes oxidation during the oxidation reactions of quinoline. So अगर इस ਵਿੱਚ पोटाशियम परमैंगनेट ऐड करांगे which is a strong oxidizing agent, तो starting ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ we can see कि ये ring aromatic character maintain रहेगा और ये ring ਦੀ oxidation ਹੋ ਜਾਏਗੀ और ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਊਜ਼ਡ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਨੰਬਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज़ pyridine क्योंकि pyridine रिंग रह गई है। सो दिस इज़ pyridine 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और उस तो बाद जैसे इसमें हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी एंड वी आर लेफ्ट विथ pyridine 3 कार्बोक्सिलिक एसिड और जिसनों असी निकोटिनिक एसिड भी कहने हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट quinoline। सो इस तो बाद साडा नैक्सट जिहड़ा लास्ट कंपाउंड रह गया है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच दैट इज़ आइसोक्विनोलिन।